Very good afternoon, students. It's our 31st lecture on M3, and now we will start a new unit, that is the third unit. That third unit, one part of the third unit is a Fourier transform is here. So we will see the problems on that Fourier transform. First we see what is the definition of Fourier transform, where we apply that Fourier transform. Before that we have seen a Laplace transform, and that is a Fourier transform. That transform which is used to convert one form of function to another form of function. So which form of function here is converted? Here is a non-periodic function f of t, that is in a time domain, that can be transformed into the function which is in a frequency domain. Now where we use that Fourier transform, we use in a discrete structure, then we use in a signal processing, then we use that Fourier transform to find solution of partial differential equation. There are many more applications in engineering field for that Fourier transform. So first we will see how to get the Fourier transform. The Fourier transform for the function f of x is in this form, f of s is equals to, that is the standard form, and we have derived that result, but there is no need to derive that. We have to just apply that formula to get the Fourier transform of function. So how we get that? F of s is equals to integral from minus infinity to infinity f of u e raised to minus su du, in that form. Now that is a definite integral. अब जो जिस फंक्शन का हम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं दैट शुड बी इन दिस फॉर्म. अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स है मैडम, यू आर रिटन हियर एफ ऑफ यू. सो इट मे बी एफ ऑफ यू, इट मे बी एफ ऑफ एक्स, इट मे बी एफ ऑफ टी. व्हेन वी कंसीडर अ डेफिनेट इंटीग्रल, सो पैरामीटर डजेंट मैटर. यहाँ पे एफ ऑफ यू की जगह एफ ऑफ एक्स भी लिखना तो प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर हमें एफ ऑफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है. Then next is a inverse Fourier transform. So how we get inverse Fourier transform? So that inverse Fourier transform, that is a Fourier transform. So inverse Fourier transform f of x is equals to 1 upon 2 pi. Again the limit is from minus infinity to infinity. अब यहाँ पे f of u की जगह f of s यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ का f of u यहाँ पे. अब यहाँ पे f of u की जगह हमने f of x कंसीडर किया, पैरामीटर x. So integral from minus infinity to infinity f of s e raised to minus sx. There is a ds. That integration is with respect to s. Then again that Fourier transform, there are a Fourier cosine transform as well as Fourier sine transform. Now how to define a Fourier cosine transform? So Fourier cosine transform formula, that is equals to, यहाँ पे कोएफिशिएंट अगर c है that means Fourier cosine transform इंटीग्रल. यहाँ पे लिमिट जो रहते हैं that is from 0 to infinity. अगर Fourier sine Fourier transform लिया सिंपली then माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे रहेगा 0 to infinity f of u. यहाँ पे e raised to minus i s u की जगह क्या रहेगा? cos u du रहेगा. बिकॉज हमें पता है कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है. कॉम्प्लेक्स फॉर्म अगर हमने इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे cos s u माइनस i इंटू साइन एस यू. अब जो cos पार्ट रहता है सो वी कंसिडर फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और जो साइन पार्ट रहता है इसका वी कंसिडर इन अ फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म. सो ऐसे फॉर्म में ये फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव होता है. अगर फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का हमें इनवर्स लेना है तो फिर क्या चेंजेस होगा? एफ ऑफ यू बाहर आ जाएगा, दैट इज एफ ऑफ यू. वी कंसिडर एफ ऑफ एक्स पैरामीटर यहाँ पे होगा 2/5. अगेन लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और जो एफ सी एस है इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा. यहाँ पे कॉस एस एक्स, और यहाँ पे इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू यस. फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म कंसीडर किया तो सिंपली यहाँ पे कॉस की जगह क्या होगा? यहाँ पे सॉरी मैंने कॉस नहीं लिखा है, यहाँ सॉरी साइन नहीं लिखा है, तो यहाँ पे कॉस की जगह साइन हो जाएगा. सो इसे कोएफिशिएंट यहाँ पे यस दिख रहा है, दैट मींस इंटीग्रल फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म. इट इंटीग्रेट यस इंटीग्रल फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म. इंटीग्रल इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू साइन एस यू डी विद रिस्पेक्ट टू. अगर हमें रिवर्स लेना है, इनवर्स लेना है, तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये अंदर चली जाएंगी, एफ ऑफ यू यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज योर एफ ऑफ एक्स 2/5. इंटीग्रल इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस यस साइन एस एक्स ds. So that is the Fourier sine transform, Fourier cosine transform and their inverse. यहाँ पे एक कंडीशन नोट यहाँ पे लिखी है मैंने कि if f of x is an even function then Fourier transform is equals to Fourier cosine transform. अगर इवन फंक्शन
रहता है हमारा एफ ऑफ एक्स। अगर हमने आइडेंटिफाई किया इवन और ऑड की डेफिनेशन सबको पता है, हमने देखे थे m1 m2 में किस फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स आता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स, देन इट इज कॉल्ड एज अ इवन फंक्शन। एग्जांपल हमें पता है कि एक्स स्क्वायर हमने लिया तो एक्स स्क्वायर इवन है, क्योंकि हमने अगर एक्स को माइनस एक्स से भी रिप्लेस किया तो फाइनली अगेन वी गेट अ एक्स स्क्वायर। अगर सेकंड, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन देन फूरियर ट्रांसफॉर्म इज इक्वल्स टू फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। अगर वहां पे ऑड फंक्शन रहता है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म में। अब हमें ऑड फंक्शन भी पता है कि एक्स क्यूब अगर हमने कंसीडर किया एंड व्हेन वी रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स देन वी गेट अ माइनस एक्स क्यूब, दैट मींस इट इज अ ऑड फंक्शन। आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल पता है, हमने लिए थे जब हमने फूरियर सीरीज ली थी m2 में। So we have seen that odd function even function concept. So remember that function here we have to use. So these are all the formulas and we have to now solve the problems on that. So we will see now. Now we comes on the problem of Fourier transform. I have written one problem, find a Fourier transform, that FT denote a Fourier transform of f of x. हमें f of x का Fourier transform निकालना है. We have defined that f of x that value of f of x is x when mod x is less than equals to a, and that is equals to 0 when mod x is greater than a. So I have written that function as it is. अब इसका मीनिंग क्या होता है कि when mod of x is less than equals to a, that means mod है x की, मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू आ रही है उसमें, that means when x is lies in between minus a to a. अगर x in between minus a to a है, that means the value of f of x is equals to x. mod x is greater than a, मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी, व्हेन मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एन एंड व्हेन मॉड एक्स इज लेस देन एन, बिकॉज एक्स हैज अ पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू आती है यहाँ पे अगर मॉड हम कंसीडर कर रहे हैं। मतलब अगर एक्सट्रीम पोजीशन में एक्स रहता है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन ए और व्हेन एक्स इज लेस देन ए, ऐसे केस में उसकी वैल्यू क्या रहेंगी, फंक्शन की जीरो रहेंगी, एंड व्हेन दैट एक्स इज लाइज इन बिटवीन माइनस ए टू ए द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन इज अ एक्स। सो ऐसे फॉर्म में आया। सो रिमेंबर दैट थिंग, यहाँ पे दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाती है, लेस देन और इक्वल्स टू, दैट मींस व्हेन एक्स इज लाइज इन बिटवीन माइनस ए और ए। नाउ वी कम्स ऑन द फॉर्मूला। अब हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पता है, बाय द फूरियर ट्रांसफॉर्म हाउ वी राइट दैट, एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, हियर इज अ एफ ऑफ एक्स ई रेज़ टू माइनस ऑफ आई एस एक्स डीएक्स। ऐसे फॉर्म में हमारा फॉर्मूला है Fourier ट्रांसफॉर्म का। सो पुट द वैल्यू ऑफ दैट, वी आल्सो राइट द इंटरवल। अब हमारा जो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, इनके बीच में ये इंटरवल आ रहा है माइनस ए टू ए का। सो वी हैव टू स्प्लिट दैट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हैव टू स्प्लिट दैट। अब यहाँ पे हमारा इंटरवल हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए। सो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए अगर हमने फंक्शन की वैल्यू कंसिडर की तो क्या होंगी, जीरो होंगी, क्योंकि हमें पता है कि अगर x इज लेस देन ए है, लेस देन ए मतलब अगर वो निगेटिव में जाता है माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जीरो होंगी, ई रेज़ टू माइनस ऑफ आई एस एक्स डी एक्स। देन प्लस सेकंड कंसिडर करेंगे माइनस ए टू ए का इंटरवल, माइनस ए टू ए। अब माइनस ए टू ए कंसिडर की तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x है, और यहाँ पे ई रेज़ टू माइनस ऑफ आई एस एक्स डी एक्स। उसके बाद का नेक्स्ट इंटरवल रहेगा हमारा a टू इंफिनिटी, मतलब व्हेन x इज ग्रेटर देन a, व्हेन x इज ग्रेटर देन a इट्स वैल्यू इज 0, एंड व्हेन x इज लेस देन a मतलब वो अगर निगेटिव की तरफ है, व्हेन x इज लेस देन a सो निगेटिव जो कुछ भी वैल्यूज में रहेंगे, सो व्हेन x इज लेस देन a दैट इज आल्सो 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन a दैट इज आल्सो 0, सो e रेज़ टू माइनस ऑफ i एस एक्स dx। मतलब इसका मीनिंग एक ही रहेगा यहाँ पे कि जब x हमारा लाई होगा इन बिटवीन माइनस ए टू ए, जब x हमारा लाई होगा इन बिटवीन माइनस ए टू ए, तभी उस फंक्शन के लिए कुछ तो भी नॉन जीरो वैल्यू है, एंड दैट इज अवर x। सो अब हमें पता है कि यहाँ पे अगर इंटीग्रेंट हमारा जीरो, यहाँ पे भी इंटीग्रेंट जीरो, मतलब पूरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। अब इंटीग्रल अगर जीरो हो रहा है सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर f of s is equals to, we write here f of s that is equals to integral is from minus a to a, here is a function x into e raised to minus of I s x dx।
ऐसे फॉर्म में आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, एक है अलजेब्रिक और एक है एक्सपोनेंशियल। अब लेयर रूल अगर हमने यहाँ पे लगाया तो हमें पता है कि LIATE लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड देन एक्सपोनेंशियल। देन इसका मतलब हो गया कि अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड है। अब सेकंड हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और जनरलाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो क्या रहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू माइनस ऑफ isx। तो ये हो गया हमारा e रेज़ टू माइनस ऑफ isx, इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर x का जो कोएफिशिएंट है वो दैट इज माइनस ऑफ is, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देन माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ नेक्स्ट, मतलब इसका नेक्स्ट इंटीग्रेशन आएगा। तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन इज अगेन e रेज़ टू माइनस ऑफ isx अपॉन माइनस is and that also minus is, so that minus is first as it is and second when again we take the integration of that term minus of is। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगली टर्म प्लस वन का डेरिवेटिव हमें पता है कि क्या होता है, जीरो होता है। सो जीरो इंटू समथिंग वो जीरो हो जाएगी, मतलब टर्म हमारी यहाँ तक ही आएंगी। सो वी स्टॉप हियर और हमारे लिमिट्स है -a to a। अब लिमिट वन बाय वन हम पुट करेंगे, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा x e रेज़ टू माइनस ऑफ isx, यहाँ पे माइनस is, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, बट यहाँ पे अगेन साइन हमारी माइनस है, यहाँ पे e रेज़ टू माइनस ऑफ isx और यहाँ पे हो गया हमारा आई स्क्वायर हो जाएगा। वो आई स्क्वायर हमें पता है कि क्या रहता है आई स्क्वायर की वैल्यू, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू नथिंग बट -1। तो ये हमारा यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर यहाँ पे होगा हमारा आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू रहती है हमारी माइनस, तो यहाँ पे मैं माइनस लिख देती हूँ, एस इंटू एस इट बिकम एस स्क्वायर, लिमिट्स इज फ्रॉम -a to a, ऐसे फॉर्म में होगी। अब ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आई राइट हियर दैट इज x e रेज़ टू माइनस ऑफ isx अपॉन माइनस i, यस माइनस माइनस बिकम अ प्लस e रेज़ टू माइनस ऑफ isx और यहाँ पे ये होगा हमारा एस स्क्वायर, लिमिट्स फ्रॉम -a to a। अब सबसे पहले हम फर्स्ट अपर लिमिट पुट करेंगे। अब अपर लिमिट अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू हमने क्या किया इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब जो x की टर्म है x की टर्म रिप्लेस हो जाएंगी अपर लिमिट से, अपर लिमिट a है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा a इंटू e रेज़ टू माइनस ऑफ isa अपॉन माइनस is, ये अपर लिमिट, देन प्लस सेकंड यहाँ पे भी अपर लिमिट पुट होगा e रेज़ टू माइनस ऑफ isa अपॉन s स्क्वायर माइनस, अब लोअर लिमिट की तरफ जाते हैं हम। अब यहाँ पे लोअर लिमिट पुट किया तो यहाँ पे -a आ जाएगा, यहाँ पे e रेज़ टू, यहाँ पे -a आने की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा isa अपॉन में -is, देन प्लस s स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहाँ पे माइनस आने की वजह से ये प्लस हो जाएगा। सो e रेज़ टू isa ब्रैकेट कंप्लीट। सो ऐसे फॉर्म में हमारे टर्म आ जाते हैं। अब थोड़ा सा अगर यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर की टर्म, यहाँ पे भी स्क्वायर की टर्म, तो दोनों टर्म में से हम स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे -s है और यहाँ पे भी -s है, सो फ्रॉम दैट अगेन टू टर्म्स वी टेक अ माइनस साइन कॉमन, तो वो माइनस साइन हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। अब तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे a भी कॉमन निकल जाता है, सो वी टेक अ a कॉमन, यहाँ पे -s कॉमन, अब यहाँ पे सिंपली रहेगा e रेज़ टू माइनस ऑफ isa। अब यहाँ पे माइनस साइन ये टर्म लेने की वजह से यहाँ पे तो ये माइनस माइनस क्या होगा हमारा प्लस हो जाएगा, पर ये माइनस बाहर निकलेगा, ये तो प्लस हो जाएगा, e रेज़ टू isa रहेगा यहाँ पे। उसके बाद आगे की टर्म की तरफ आते हैं हम, यहाँ पे प्लस 1 अपॉन स्क्वायर और यहाँ पे हो गया हमारा e रेज़ टू isa प्लस e रेज़ टू माइनस ऑफ isa ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे अब यहाँ पे। सो इन दिस वे वी हैव रिटन दैट सिंप्लीफिकेशन। अब और अगर थोड़ा सा इसमें देखें तो ये अगर ध्यान से देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे अगर हमने 2 लिख दिया और यहाँ पे 2 की एडजस्टमेंट कर, यहाँ पे
यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये माइनस है, ये माइनस साइन होने की वजह से ई रेस टू आई, ये तो प्लस हो गया हमारा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आएगा। सो माइनस अगर साइन हमने बाहर ले ली क्योंकि ये माइनस यहाँ पे अप्लाई होने की वजह से ये माइनस आ जाएगा। तो ये अगर एक स्टेप लगे तो हम ज़्यादा लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 एडजस्ट कर दिया हमने, सो दैट इज 2a अपॉन माइनस ऑफ आई एस। अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ई रेस टू आई एस है प्लस ई रेस लगे तो एक स्टेप लिख लेते हैं हम, ई रेस टू आई एस है यहाँ पे प्लस ई रेस टू माइनस आई एस है, अपॉन में आ जाएगा हमारा 2 प्लस, अब यहाँ से अगर माइनस साइन हमने कॉमन ले ली तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एस क्यू, और यहाँ पे आ जाएगा ई रेस टू आई एस है, यहाँ पे माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस आई एस है। अब यहाँ पे तो अब ये अगर टर्म ध्यान से देखेंगे यहाँ पे बीच में माइनस साइन है तो ये साइन में कन्वर्ट हो सकता है, पर यहाँ पे साइन में कन्वर्ट होने के लिए हमें 2i एडजस्ट करना पड़ेगा। अब 2i अगर डिनोमिनेटर में लिया तो ऑब्वियसली वी हैव टू टेक इट एज न्यूमरेटर, सो ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। एंड नाउ वी कम्स ऑन दैट साइड, नाउ वी कम्स ऑन दैट साइड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्म s इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो हमारा i है, i हम कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, i को अगर न्यूमरेटर में लेके जाना है तो i से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे i हो जाएगा और यहाँ पे i स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे i, यहाँ पे i स्क्वायर, सो i स्क्वायर हमें पता है कि अगेन i स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस, सो माइनस माइनस बिकम अ प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे i आ जाएगा। सो आई राइट हियर दैट इज 2ai अपॉन यस। अब इसका रिजल्ट क्या हो रहा है हमारा, दैट इज नथिंग बट e raised to i s a plus e raised to minus i s a by 2, that is nothing but a cos of s a, ये हो गया cos of s। उसके बाद माइनस ऑफ 2i अपॉन s स्क्वायर, और आगे की टर्म अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन ऑफ s a, यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन s a। थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे तो 2i यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो 2i वी टेक अ कॉमन, यहाँ से 2i अब कॉमन निकाल लेंगे और यस भी ले लेंगे कॉमन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सो दैट इज 2i, यहाँ से अगर s ले लिया हमने तो यहाँ पे क्या रह जाएगा a cos s a, यहाँ पे आ जाएगा हमारा a cos s a, और यहाँ पे हमारा माइनस साइन एज इट इज रहेगा, यहाँ पे रहेगा 1/s इंटू साइन s। सो इन दिस वे वी गेट अ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन। ये फंक्शन हमें यहाँ पे डिफाइन किया था, थोड़ा मैंने यहाँ पे जो बताया कि अगर मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू a, उसका मीनिंग रहता है कि व्हेन x की वैल्यू is lies in between, when x is lies in between minus a to a, when minus a is less than or equals to x is less than equals to a, दोनों वैल्यू के बीच में अगर x आ रहा है then that is x। अब यहाँ पे है mod x is greater than a, मतलब उसकी एक्सट्रीम कंडीशन, यहाँ पे जो कंडीशन है उसकी रिवर्स कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी, मतलब यहाँ पे हमें दिया है कि x is greater than or equals to minus a, तो यहाँ पे रिवर्स क्या हो जाएगा, when x is less than minus a, यहाँ पे when x is less than or equals to a, यहाँ पे उसकी रिवर्स कंडीशन when x is greater than a, उसका वो मीनिंग हो जाए, मतलब x अगर a से ग्रेटर है और x अगर माइनस ए से लेस है तो उसकी वैल्यू 0 आती है। इसलिए जो हमारे इंटीग्रेशन हमने लिए थे दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए दैट मींस x इज लाइक इन बिटवीन दैट इंटरवल फॉर x इज लेस देन माइनस ए, तो उसकी वैल्यू 0 थी। और उसके बाद का जो हमने लास्ट इंटरवल लिया था दैट इज फ्रॉम a टू इंफिनिटी, दैट इज फ्रॉम a टू इंफिनिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन a, उसके लिए भी उसकी वैल्यू 0 आती थी, और सिंपली इसके लिए उसकी वैल्यू नॉन जीरो दैट इज x थी, सो वी कंसीडर ओनली दैट इंटीग्रेशन। सो रिमेंबर दैट। So that is your Fourier transform for the particular function f of x, when that f of x should be in the interval. And now we see another problem. Now we will see one more problem on that Fourier transform here. यहाँ पे हमें f of x कैसे डिफाइन किया है, देखो f of x is equals to 1 when mod x is less than equals to a, and that should be 0 when mod x is greater than a। अब जैसे मैंने बताया कि mod x में अगर वैल्यू रहती है मतलब उसका मीनिंग क्या होता है इसके लिए, अब ऐसे फॉर्म में है, इसका मीनिंग हो गया when minus a is less than or equals to x is less than equals to a।
मतलब मॉड एक्स जब हम कंसीडर करते हैं तो दोनों वैल्यूज की हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, दैट मीन्स व्हेन एक्स इज लाइज इन बिटवीन -a to a। अब मॉड एक्स इज ग्रेटर देन a है, मतलब उसकी रिवर्स कंडीशन ऊपर की, मतलब यहाँ पे क्या होगा, व्हेन एक्स इज, यहाँ पे x इज लेस देन a है, दैट मींस x इज ग्रेटर देन a, और यहाँ पे होगा व्हेन x इज लेस देन -a। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर दैट फंक्शन। अब इसके हिसाब से हम फाइंड इट्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। फॉर्मूला हमें पता है कि क्या रहता है, f of s is equals to integral is from -infinity to infinity, here is our f of x, here is the e raised to minus of I sx dx। ओके, अब हमें अगर और इसे स्प्लिट करना है तो ये क्या हो जाएगा, दैट f of s is equals to, अब यहाँ पे इंटरवल 3 आएंगे हमारे, when -infinity to -a then -a to next is a +a and then +a to infinity, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था। तो सबसे पहला -infinity to -a, then सेकंड इज -a to a, और हमारा थर्ड आ जाएगा -a to a, उसके बाद हमारा थर्ड है a to, ऐसे इंटरवल होंगे हमारे, जो हमारे यहाँ की जो वैल्यूज है वो उसमें आ जाएगी। सो -infinity to -a अगर हमने कंसीडर किया, दैट मींस व्हेन x इज लेस देन -a, मतलब x की वैल्यू अगर -a से भी लेस हुई, सो दैट x इज लाइज इन बिटवीन -infinity to -a। अब जब x की वैल्यू लेस देन -a रहती है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, x शुड बी इक्वल्स टू, उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे हमारा f of x रहता है, तो f of x की वैल्यू हमारी हो गई 0, e raised to minus of I sx dx। अब जब हमारा x रहता है इन बिटवीन -a to a के बीच में हमारा x जब रहता है तो f of x की वैल्यू है हमारी 1, सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 e raised to minus I sx यहाँ पे dx। उसके बाद हम अगर कंसीडर करेंगे नेक्स्ट, व्हेन x इज इन बिटवीन फ्रॉम a to infinity का मतलब हो गया व्हेन x इज ग्रेटर देन a, x a के बाद में जब x की वैल्यू रहेंगी तो वहां पे भी हमारा f of x 0 रहेगा और e raised to minus of I sx dx। ओके, अब जब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम तो फर्स्ट इंटीग्रल एंड लास्ट इंटीग्रल बोथ बिकम 0, क्योंकि उसमें इंटीग्रेंड जो है हमारा वो 0, तो सिंपली वी हैव टू कैलकुलेट दैट इंटीग्रल ओनली। सो यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन f of s is equals to इंटीग्रल इज फ्रॉम -a to a e raised to minus of I sx। अब उसकी वैल्यू क्या होगी, व्हेन वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर इसको इंटीग्रेशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज e raised to minus of I sx। अब विद रिस्पेक्ट टू x है तो x का कोएफिशिएंट है -is, वो डिनोमिनेटर में आएगा। लिमिट्स क्या है हमारे इंटीग्रेशन के, फ्रॉम -a to a। अब हम लिमिट पुट कर देंगे 1 by 1। अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो -1 by s इज अ कांस्टेंट टर्म, सो -i by s हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पे व्हेन वी पुट अपर लिमिट तो x रिप्लेस हो जाएगा a से, तो यहाँ पे हो जाएगा e raised to minus s into a। इसके बाद अगर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे साइन माइनस आ जाएंगे और यहाँ पे x रिप्लेस हो जाएगा e raised to minus s minus a से, ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पे अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, -is, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस की टर्म यहाँ पे माइनस है, अगर ये माइनस यहाँ पे माइनस आए हैं, अब माइनस आए अगर हमें निकालना है तो हमें पता है कि आई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आई से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये तो आई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आई आ जाएगा। सो वी टेक दैट, सो अगली स्टेप में कर देंगे लगे तो वो हम e raised to minus of I ऐसे, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस e raised to माइनस माइनस बिकम प्लस I s। सपोज हमने यहाँ पे i से मल्टीप्लाई कर दिया i और यहाँ पे भी i से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया हमारा i स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा f of s इज इक्वल्स टू i स्क्वायर इज माइनस 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 बिकम प्लस, तो ये हो गया हमारा i s। अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेने के वजह से प्लस टर्म हमारे पहले आ जाएंगे, दैट इज i s माइनस e raised to माइनस i s। अब अगर हम यहाँ पे 2i की एडजस्टमेंट कर देंगे, अगर हमने यहाँ पे 2i कर दिया है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, यस यहाँ पे भी हमें
2i की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये टर्म हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ i, यस। सो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सिंपली यहाँ पे क्या है i। अब यहाँ से हम यहाँ पे तो ये आई स्क्वायर हमारा माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली आई ऐसे ही रहेगा, बट यहाँ से हमने माइनस साइन कॉमन ले ली, तो ये हो गई हमारी माइनस साइन। अब यहाँ पे हमारी ई रेस टू आई एस ए माइनस ये टर्म हो जाएंगे ई रेस टू माइनस आई एस। अब डिनोमिनेटर में हमने अगर यहाँ पे 2i लिया तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 2i एडजस्ट करना। अब 2i एडजस्ट तो हमने कर दिया। अब अगर इसका रिजल्ट आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, ई रेस टू आई एस ए माइनस ई रेस टू माइनस आई एस ए अपॉन 2i, दैट इज नथिंग बट साइन एस ए। तो हम उसको लिख लेते हैं साइन एस ए। अब ये तो हो गया हमारा साइन एस ए, यहाँ पे भी हमारा आई है, यहाँ पे भी आई है, अगेन इट बिकम आई स्क्वायर। हमें पता है कि आई स्क्वायर इज नथिंग बट आई स्क्वायर क्या रहता है हमारा, यस इट इज माइनस वन। अब माइनस वन माइनस माइनस बिकम अ प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2/s। सो 2/s साइन एस ए, दैट इज अवर एफ ऑफ एस। तो ये हो गया हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ। होप यू अंडरस्टैंड दैट। अब ये तो हो गया हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म का सेकंड प्रॉब्लम, भी आप लोगों को आ गया होगा समझने। और एक प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने लिखा है, इट्स फॉर योर होमवर्क के लिए ये आपके, इसका फंक्शन देखो क्या कैसे डिफाइन किया है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1। अब अगर यहाँ पे मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1 मतलब कंडीशन हो गई व्हेन एक्स इज लाइज इन बिटवीन -1 to 1, और यहाँ पे मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस ए, सॉरी यहाँ पे 1 है सो -1, एंड व्हेन सेकंड टाइम एक्स इज ग्रेटर देन 1। सो ऐसे सब कंडीशंस यहाँ पे आप लोगों को चेक करनी है। मतलब अगेन यहाँ पे 3 इंटरवल होंगे, इसके भी यहाँ पे सिंपली ए की जगह 1 है, और आंसर जो है उसका हमने जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया है वो फंक्शन क्या है हमारा, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स फॉर द इंटरवल व्हेन एक्स इज लाइज बिटवीन -1 to 1, और अदर इंटरवल के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, मतलब इन बिटवीन -1 to 1 ही हमें एफ ऑफ एक्स के फूरियर ट्रांसफॉर्म मिलेंगे। वहां पे फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो ये उसका आंसर है, दैट इज -4s cos s माइनस sin s। एक बार लगे तो मैं चेक कर देती हूँ। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है हमारा s, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में s क्यूब, सो आंसर इज -4 इन ब्रैकेट s cos s माइनस sin s अपॉन s क्यूब। ये आंसर है इस फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स। सो आप लोगों को अच्छे से करना है, सॉल्व करके देखो, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने स्टेप्स देखे हैं किए हैं वैसे ही यहाँ पे करना है। सिंपली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है फॉर द इंटरवल -1 to 1। अब तक हमने देखा था यहाँ पे ए था, यहाँ पे 1, वो चेंजेस है सिर्फ, बाकी आप लोगों को स्टेप सभी पता है। सो यू हैव टू डू दैट। थैंक यू।